Let us see our next question. MA Limited is commencing. Commencing is indicating that it is the first year of the business. A new project for manufacturing of a plastic component. The following cost information has been ascertained for annual production of 12,000 number of units, which is the full capacity. So the following cost structure is given to us at full production capacity, that is 12,000 number of units, and that is the full capacity, 100% capacity utilization. Material is given, direct labor and variable expenses are given, fixed manufacturing expenses, depreciation, fixed administration expenses, highlight the portion related to the factory. The selling price per unit is expected to be rupees 96 and selling expenses rupees 5 per unit. 80% of which is variable. In the first 2 years of the operation, production sales are expected to be as follows. Production is given and sales is given. Production is given and sales is given. To assess the working capital requirement, following additional information is also available. Stock of raw material, WIP, debtors, cash balance, creditors for the supply of raw material, creditors for expenses. Prepare for 2 years. 1. Projected statement of the profit or loss ignoring taxation. Second, projected statement of the working capital requirement. Like that, so these are the 2 questions that we have. I request all of you to go through the question properly, then we will discuss how to do it. So friends, in the first part of the question says that you are required to prepare a projected statement of the profit or loss. So we are required to prepare a small statement for the profit or loss calculation for the first year as well as for second year. We have been provided with the production 6,000 number of units for the first year. I am discussing for the first year initially. Material cost is 40 into 6,000 number of units. Why? Because the material cost is a variable cost. 20 into 6,000 once again. Now it is 6 rupees per unit multiplied with 12,000 number of units. Why, sir? Because you can see that the language of the question clearly provides to us the following cost information has been ascertained for annual production of 12,000 number of units. So when we are going to work at 12,000 number of units, at that point of time, this is the cost structure that we have. In respect of the fixed cost that we understand is that the in total fixed cost is going to remain same. In total it is not going to change even though if at all you produce less number of units. अगर आपने कम नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है उसके बावजूद आपका टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 12,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इंटू 6 यानी कितना होगा 72,000. Depreciation is again a fixed cost, so it is 12,000 number of units into 10. Fixed administration, the word fixed is clearly indicating that so we are required to consider this 4 into the total number of capacity units 12,000 जिसके ऊपर हमको ये cost structure दे रखा है. That is the way we are required to prepare the statement. I request all of you to write down answer along with me. Statement for profit or loss for year 1 and year 2. फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों साल का हम लोग प्रिपेयर करेंगे, पहले साल का और दूसरे साल का.
वी स्टार्ट विद द डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। फर्स्ट ईयर का हमारा प्रोडक्शन है 6000 नंबर ऑफ यूनिट्स। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 40 rupees per unit, that comes to 2,40,000। डायरेक्ट लेबर and variable expenses, again 6,000 number of units into 20 rupees per unit, that comes to an amount of 1,20,000। उसके बाद फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, that is 12,000 number of units into 6, that comes to 72,000 rupees। डिप्रिशिएशन भी फिक्स कॉस्ट ही है, so 12,000 number of units into 10, 1,20,000। Fixed administration expenses related to the factory, $12,000 number of units into 4, that is 48,000 rupees। So at this point of time we will have cost of goods produced. At this point of time we will add opening finished goods, but we know that so the first year का beginning है, उसमें opening finished goods 0 होगा। Language of the question में clearly बताया that say it is commencing, यानी क्या हुआ, this is the first year। less closing finished goods, we can understand that say 2,40,000 plus 1,20,000 plus 72,000 plus 1,20,000 plus 48,000, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आता है 6 लाख। हमने कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, हमने 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, उसमें से बेचे कितने हैं 5,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 1,000 नंबर ऑफ यूनिट्स का। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, 6 लाख अपॉन 6,000 मल्टीप्लाई विद 1,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि जो 5,000 था उसमें 6,000 का हमारा प्रोडक्शन था, उसमें से 5,000 हमने बेच दिया, divided by 6,000 into 1,000, that comes to an amount of rupees 1 lakh। So cost of goods produced plus opening finished goods minus closing finished goods will give COGS, cost of goods sold। वो कितना आएगा फ्रेंड्स 5 लाख। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि सेलिंग एक्सपेंसेस में 2 दे रखा है, एक हमको वेरिएबल दे रखा है, पर यूनिट कितना है 5, क्या दे रखा है उसमें से 80% वेरिएबल है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल कैसे होगा, 5 into 80%, यानी पर यूनिट आ गया 4 रुपए, मल्टीप्लाई विद 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग सेल कर रहे हैं ना उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो शायद कुछ 20,000 आंसर आता है। उसके बाद फिक्स्ड 5 into
remaining 20%. So 100 minus 80 into कितना होगा 12,000 number of units, यानी 5 into 20% कितना आएगा 1 रुपया, मल्टीप्लाई विद 12,000 number of units तो कितना आएगा 12,000 हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें ये दोनों एक्सपेंसेस ऐड किए जाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना वो प्रॉफिट लॉस का बना रहे हैं, तो इसमें सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर किया जाएगा इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। जब हम लोग वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे ना तभी डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करेंगे। तो 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 12,000 यानी 5,32,000। फिर हम लोग लिखेंगे सेल्स, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बेचा फ्रेंड्स 5,000। सेलिंग प्राइस हमको क्वेश्चन में दे रखा है 96 रुपीस, दिस इज द सेलिंग प्राइस। सो 5,000 into 96, sales value comes to 4,80,000। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या मिलेगा प्रॉफिट और लॉस। सो देयर इज अ लॉस अनफॉर्चुनेटली ऑफ 52,000। ऐसा करके हमको फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो भी हम लोग फर्स्ट ईयर का वर्किंग करेंगे ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन वी आर रिक्वायर्ड टू डू फॉर द सेकेंड ईयर। ऑफ कोर्स सेकेंड ईयर में क्या होगा ओपनिंग फिनिश गुड्स आएगा। तो फ्रेंड्स ऊपर जो मैंने आपको वर्किंग बताया फिनिश गुड्स के स्टॉक का उसका मैं छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ पे बना रहा हूँ। सो हियर वर्किंग नोट फॉर calculating closing finished goods units फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों का साथ में बना देते हैं। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर का ओपनिंग 0 होगा क्योंकि अभी बिजनेस शुरू किया है। प्रोडक्शन 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स का, सेल्स 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स का। सो क्लोजिंग स्टॉक होगा 0 plus 6,000 minus 5,000 that comes to 1,000। सेकेंड ईयर बिगिनिंग 1,000 का ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन हमको क्वेश्चन में दे रखा है 9,000 और सेल दे रखा है हमको 8,500। ये प्रोडक्शन और ये सेल्स, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1,000 प्लस 9,000 माइनस 8,500, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1,500 नंबर ऑफ यूनिट्स का। That is the way the closing stock is calculated for first year and second year। क्योंकि यहाँ पे 1,000 नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ से आया उसका एक छोटा सा वर्किंग नोट हमने यहाँ पे बना दिया है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। जैसे हमने फर्स्ट ईयर का वर्किंग किया कुछ वैसा ही हम लोग सेकेंड ईयर का भी करेंगे फ्रेंड्स। सेकेंड ईयर में जैसे कि अपने को प्रोडक्शन दे रखा है दैट द प्रोडक्शन इज 9,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 9,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करेंगे। कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज 40 रुपीज पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 3,60,000। अगेन डायरेक्ट वेजेस उसमें वापस इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, तो उसके लिए प्रोडक्शन को ध्यान में लिया जाएगा जो कि है 9,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। सो आई थिंक इट विल बी 1,80,000। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इन टोटल सेम रहेगा 72,000 रुपीज फ्रेंड्स। डिप्रिसिएशन सेम रहेगा
अब ये प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन चल रहा है, इसलिए उसको ध्यान में लेंगे हम लोग। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री दे रखा है हमको, दैट इज 48,000। उसके ऊपर से कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आ जाएगा 3,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 1,20,000 प्लस 48,000, दैट कम्स टू 7,80,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा 7,80,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर 1 विल बिकम द ओपनिंग फॉर द सेकेंड ईयर 1 लाख। द सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कैसे होगा वो समझते हैं। 7,80,000 rupees is the cost for 9,000 number of units. Yes, sir. I'm writing it over here due to lack of space. 7,80,000 कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए सर? 9,000। हमारा सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,500 नंबर ऑफ यूनिट्स। सर 1,500 नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आया? 1 प्लस 9 10, 10 माइनस 8,500, क्योंकि हमारा सेकेंड ईयर का सेल्स है 8,500। So 7,80,000 upon 9,000 into 1,500, that comes to an amount of 1,30,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा सेकेंड ईयर के एंड का। बस हो गया सिंपल, 780 प्लस 1 लाख माइनस 1,30,000, तो कितना आया? 7.5 लाख। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्या लिखेंगे? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। उसमें क्या लिखा जाएगा? 5 into 80% into number of units हमने सेल किया है 8,500। So we understand that say 4 रुपए per unit into 8,500, that comes to 34,000 rupees। फिक्स एक्सपेंसेस है 12,000 रुपए। उसके ऊपर से कॉस्ट ऑफ सेल्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 7.5 लाख प्लस 34,000 प्लस 12,000, दैट इज 7,96,000। अच्छा, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बेचा? 8,500। कौन सी प्राइस में? 96 की प्राइस में। तो सेल्स वैल्यू कितना हुआ? सेल्स वैल्यू हुआ 8,16,000 माइनस 796, क्या हुआ? प्रॉफिट 20,000 का। दैट इज द वे द प्रॉफिट इज फाउंड। तो हमारा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट होगा 20,000 रुपए। ऐसा करके हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। सो राइट डाउन अ स्मॉल नोट। पहला पॉइंट लिखो, टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस will be calculated, comma, using variable cost per unit and units produced। Second point, total fixed cost will be calculated using fixed cost per unit and full production capacity at which fixed cost per unit is given। Third,
for valuation of finished goods, comma, we have followed FIFO method, first in first out method, full stop. We can also follow weighted average method. Full stop. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ऐसा अज्यूम किया कि फीफो मेथड ऑफ द वैल्यूएशन हम लोग करेंगे, यानी ये जो 1500 नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास बचे हैं, इट इज आउट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 9000 नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये जो 8500 नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बेचे हैं उसमें से 1000 ओपनिंग के हैं और 7500 इस साल के प्रोडक्शन में से। ऐसा करके हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। This is what we understand, say implied from the working that say we have done. One more thing, understand it carefully. अगर यहाँ पे हम लोग weighted average method follow करते तो क्या होता वो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। As far as the first year is concerned, उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें तो क्या है कि like एक ही valuation का स्टॉक है, but second year में फर्क पड़ेगा। So just giving explanation to you कि सेकेंड ईयर के लिए अगर वेटेड एवरेज को स्टूडेंट अप्लाई करता है तो कैसे होगा वर्किंग। वर्किंग को जैसे होगा, ईयर 2 इन दैट ओपनिंग स्टॉक है 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 6 - 5। इस साल का प्रोडक्शन है 9000 नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल हो गया 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। सेल्स है 8500 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक होगा 1500 नंबर ऑफ यूनिट्स। दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी सेम अमाउंट। हमने फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैलकुलेट किया है, एंड दैट इज एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख, और इस साल का प्रोडक्शन कॉस्ट है 7,80,000। दिस इज 1 लाख, दिस इज 7,80,000। फिर क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इसका टोटल करेंगे, दैट इज 8,80,000। देन वी अंडरस्टैंड दैट से 8,80,000 इज द कॉस्ट फॉर 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जो हमारे पास स्टॉक में 1500 नंबर ऑफ यूनिट्स पड़ा है उसका वैल्यूएशन क्या होगा। वेटेड एवरेज मेथड में एक ही वैल्यूएशन होगा इस हिसाब से। दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर द स्टॉक वैल्यूएशन। ये 7,80,000 9000 नंबर ऑफ यूनिट्स का है, सो 8,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 into 1500, that comes to 1,32,000। इस हिसाब से हमको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, और अगर उस हिसाब से हम लोग वैल्यूएशन करेंगे फ्रेंड्स तो सीओजीएस बदल जाएगा, प्रॉफिट लॉस बदल जाएगा, एंड सो ऑन। क्वेश्चन में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, देन इन दैट केस यू हैव अ चॉइस टू डू आंसर बाय आइदर ऑफ द मेथड। सो दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की ओर जाते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द चैप्टर दैट वी हैव। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ना देखो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जब भी क्वेश्चन है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है, आपको ये देखने का कि क्या ये नया कंपनी है या एग्जिस्टिंग कंपनी है। हम लोग ऐसा देख सकते हैं दैट दिस इज अ न्यू कंपनी, है कि नहीं। अगर ये नया कंपनी है देन इन दैट केस हम लोग कैसे करेंगे वर्किंग। मैंने आपको लिखवाया है कि 4 स्टेप्स में हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ द WIP।
However, we understand that say ये क्वेश्चन में WIP का स्टॉक 0 ऐसा दे रखा है आपने को, स्टेप नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा। स्टेप नंबर 2 यस दैट विल बी अप्लाइड। क्या है वो स्टेप? फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन। तो कैसे किया जाएगा वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। यू मे हैव अ पॉइंट, अरे सर समझाने का क्या जरूरत है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट तो किया है। नहीं, वो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि ये जो हमारा फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन होता है उसमें डिप्रीशिएशन इंक्लूडेड होता है, और अभी हमको क्या करना है, डिप्रीशिएशन को एक्सक्लूड करना है। सो यू कैन सी दैट दिस 6 लाख रुपीस ऑफ द वैल्यूएशन इंक्लूड्स द डिप्रीशिएशन, और अभी हमको क्या करना है, डिप्रीशिएशन को एक्सक्लूड करना है। इसलिए ये जो हमारा आंसर होगा ना, ये 1 लाख से अलग होगा। कैसे, अभी वो हम लोग समझते हैं। चलो हेडिंग राइट डाउन, आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ projected statement of working capital। उसमें आप लिखिए as it is a new company, comma, we will compute working capital in following sequence। उस पे लिखो 1 WIP, second finished goods, third cash cost of sales, and fourth working capital। These are the 4 simple steps। Step number 1 WIP, in that write down ignore। Why? Because we understand that the WIP का वैल्यू 0 है, उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। स्टेप नंबर 2 फिनिश गुड्स। सो उसमें ईयर 1 एंड ईयर 2 हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग वापस ऐसा लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस का खर्चा, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का खर्चा, डिप्रीशिएशन नहीं आएगा, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का खर्चा। ये जो हमारा आंसर आएगा दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और उसके ऊपर से हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, जो भी कैश कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड होगा डिवाइडेड बाय 6000 नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू 1000, और सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो भी कैश कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड है डिवाइडेड बाय 9000 इनटू 1500। व्हाई? बिकॉज़ द फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है 1000 और सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है 1500 नंबर ऑफ यूनिट्स। ऐसा करके हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ट्राई टू कंप्लीट द रिमेनिंग आंसर ऑन योर ओन। सो फर्स्ट ईयर में 6000 into 40 that comes to 2,40,000। Direct labor and variable expenses 1,20,000। Fixed manufacturing expenses 72,000। Fixed administration expenses
48,000. 240 plus 120 plus 72 plus 48. That comes to 4,80,000. क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारा प्रोडक्शन है, और 1,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है. सो दैट कम्स टू 80,000. वैसे सेकेंड ईयर का होगा डायरेक्ट मटेरियल इन दैट 40 इंटू 9,000 3,60,000. 20 into 9,000 1,80,000. 72,000 48,000. 360 plus 180 plus 72 plus 48. That comes to 6,60,000. 6,60,000 divided by 9,000 number of units into 1,500 number of units. That comes to an amount of 1,10,000. ऐसा हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ये जो आगे वर्किंग आपने ऑलरेडी किया है उसको भी आप बेस ले सकते हो. जैसे कि आपने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है 6 lakhs and 7,80,000, और उसमें देखो डिप्रीशिएशन कितना है 1,20,000. सो व्हाट यू कैन डू, 6 lakhs and 7,80,000, उसमें से सिर्फ आप डिप्रीशिएशन डिडक्ट करो 1,20,000 रुपए. That is the way we make the computation of the cash cost of goods produced. हमारा कैश पे कितना खर्चा हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके ऊपर से हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन. Then we have step number 3, calculation of cash cost of sales. This calculation is extremely simple. फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्या किया जाएगा, कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड जो ऑलरेडी हमने आगे कैलकुलेट किया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स. फर्स्ट ईयर में ओपनिंग फिनिश गुड्स क्या होगा, 0. फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमने कैलकुलेट किया है, और जो भी हमारा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग फिनिश गुड्स होगा वो सेकेंड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, और सेकेंड ईयर का क्लोजिंग वापस हमने कैलकुलेट किया है. तो कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. उसमें क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे. ऑफ कोर्स फिक्स एंड वेरिएबल बोथ, और कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर एज वेल एज फॉर सेकेंड ईयर. फ्रेंड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर का है 32,000 और सेकेंड ईयर का है 46,000. दैट इज सपोज्ड टू बी यूज्ड बाय अस. तो फर्स्ट ईयर का सेलिंग एक्सपेंसेस है 32,000, दैट इज 20,000 प्लस 12,000, और सेकेंड ईयर का है 46,000, that is 34,000 plus 12,000. बाकी सब वैल्यूज तो अभी हमने कैलकुलेट किया. कैश कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड
is an amount of 4,80,000. ओपनिंग फिनिश गुड्स फर्स्ट ईयर का 0 है, क्लोजिंग है 80,000. So opening plus cash cost of the goods produced minus closing, तो कैश कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड हो जाएगा 4 लाख. एंड फाइनल आंसर इज 4,32,000. सेकेंड ईयर में दिस अमाउंट इज 6,60,000. ओपनिंग फिनिश गुड्स 80,000. So closing is an amount of 1,10,000. $660 plus 80 minus 1,10,000. तो आंसर कितना आएगा? 6,30,000 आएगा. Plus 46,000. That is 6,76,000. ऐसा करके हमारा कैश कॉस्ट ऑफ द सेल्स कैलकुलेट होगा फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, जिसको यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डेटर्स वैल्यूएशन सब्सिक्वेंटली. और हमारा आखिरी स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ working capital requirement. We have to do it for the first year as well as for second year. We have to prepare the working capital requirement. Let us understand ऐसे कैसे आंसर किया जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल का. यूजुअली हम लोग शुरू करेंगे विथ रॉ मटेरियल स्टॉक. रॉ मटेरियल स्टॉक कितना है कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का, जिसका कैलकुलेशन होगा कुछ ऐसे: रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 12 months मल्टीप्लाइंग विथ रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. ऐसा करके रॉ मटेरियल स्टॉक का कैलकुलेशन किया जाएगा. एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है दैट से वी कीप द रॉ मटेरियल स्टॉक इक्वल टू 2.25 months ऑफ द कंजम्पशन. जो हमने आगे स्टेटमेंट बनाया है इन दैट यू कैन सी दैट हमारा फर्स्ट ईयर का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है 2,40,000 रुपए. कैसे? 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 40 रुपए. यानी क्या हुआ फ्रेंड्स? 2,40,000 का कंजम्पशन है, सो 2.4 lakhs डिवाइडेड बाय 12, यानी क्या आ जाएगा? हमारा एक महीने का कंजम्पशन आ जाएगा. एंड वी कीप द रॉ मटेरियल स्टॉक इक्वल टू 2.25 months कंजम्पशन. 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 यानी 20,000 रुपए इंटू 2.25 महीने, यानी कितना होगा? 45,000 रुपीज. सेकेंड ईयर हमारा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना है? 9,000 नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 40 यानी 3,60,000 रुपए. सो ओवर हियर वी अंडरस्टैंड इट इज 3,60,000 अगेन डिवाइडेड बाय 12. तो हमारा मंथली कंजम्पशन आ जाएगा सेकेंड ईयर का इंटू 2.25 months. That comes to 67,500. फिर सेकेंड WIP जो कि 0 है हमारे एग्जाम्पल में. थर्ड फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हमने ऑलरेडी करके रखा है इन अवर स्टेप नंबर 2. द फिनिश गुड्स वैल्यूएशन हमको फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट हमने किया है, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 80,000 रुपीज. सिमिलरली सेकेंड ईयर का लिखेंगे. उसके बाद डेटर्स. डेटर्स का कैलकुलेशन किससे किया जाएगा फ्रेंड्स?
we understand that say cash cost of credit sales है, जो भी हमने क्रेडिट सेल्स किया उसका कैश कॉस्ट डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड, ऐसा किया जाएगा. So what is the cash cost of credit sales? 4,32,000. So 4.32 lakhs divided by 12, यानी क्या आ गया, एक महीने का आ गया. Multiplied with the collection period, क्या दे रखा है आपने को collection period? Collection period is provided to us as 1 month. So क्या करेंगे, into 1. So 4,32,000 divided by 12, that comes to rupees 36,000. उसके बाद हमको क्वेश्चन में दे रखा है कैश एंड बैंक 10,000. पहले हम लोग फर्स्ट जगह कंप्लीट करते हैं. कैश एंड बैंक 10,000. एडवांस टैक्स है नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं है, सो यूजुअली सारा करंट असेट्स खत्म हो गया. फिर हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, उसका कैलकुलेशन किया जाएगा. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू डू फॉर द प्रोसेस. द क्रेडिटर्स फॉर दैट इज रॉ मटेरियल, उसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा. Annual credit purchase divided by 12 months into average payment period. ऐसा सिंपल इसका फॉर्मूला है. ना परचेज का कैलकुलेशन कैसे होगा, वी अंडरस्टैंड इट से जब हम लोग लाइक रॉ मटेरियल का स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्या होता है, डेबिट साइड पे ओपनिंग होता है, डेबिट साइड पे परचेस होता है, क्रेडिट साइड पे कंजम्पशन होता है और क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग होता है. तो कंजम्पशन और क्लोजिंग को ऐड किया जाएगा, ओपनिंग को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और हमारे पास परचेस का बैलेंसिंग फिगर आ जाता है. सो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. फर्स्ट ईयर का कंजम्पशन कितना है फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर का कंजम्पशन है 2,40,000. तो देखो यहां पे मैं परचेस का फॉर्मूला लिखता हूं. पहले परचेस का फॉर्मूला लिखूंगा मैं ऐसे, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग, यानी ये मैंने क्रेडिट साइड लिखा, माइनस ओपनिंग, ये मैंने डेबिट साइड लिखा. तो जो भी डिफरेंस है न्यूमरेटर का वो परचेस आ जाएगा, divided by 12 months into average payment period. That is the way we will find answer. Consumption कितना है फर्स्ट ईयर का, 2,40,000. फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 45,000. फर्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 0. होल डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू एवरेज पेमेंट पीरियड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एवरेज पेमेंट पीरियड दे रखा है 1 महीना, यानी क्या करेंगे, इनटू 1. सो यूज योर कैलकुलेटर. 2,40,000 प्लस 45,000, सो 2,85,000 मस्ट बी द परचेज डिवाइड बाय 12, यानी हमारा क्रेडिटर्स कितना होगा, 23,750. ऐसा करके हमारा फर्स्ट ईयर का क्रेडिटर्स होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. क्वेश्चन में हमको दे रखा है क्या, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कितना है, 1 महीना. अच्छा कौन कौन से एक्सपेंसेस है, चलो वो देखते हैं. डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस कितना है वो देखेंगे फर्स्ट ईयर का.
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर का, एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर का, डिप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है इसलिए उसको इग्नोर करेंगे, और सेलिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर का। ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल किया जाएगा। वो जो टोटल एक्सपेंसेस आएगा डिवाइड बाय 12, तो वो एक महीने का होगा और उतना बाकी होगा। Why? Because the average payment period for expenses are 1 month. ऐसा करके हमको क्या करना है, हमको लाइक क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का एक बार वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर का वर्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस में डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस है 1,20,000, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 72,000, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है 48,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस है 32,000। तो ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल करके डिवाइडेड बाय 12 इनटू टाइम पीरियड किया जाएगा। चलो, राइट एन आंसर अलोंग विथ मी। इट इज एनुअल एक्सपेंस divided by 12 months into average payment period। पूरे साल का खर्चा क्या है वो लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस plus selling expenses, whole divided by 12 months into average payment period। ऐसा किया जाएगा। डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस पहले साल का है 1,20,000, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 72,000, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 48,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 32,000, होल डिवाइडेड बाय 12 इनटू क्या किया जाएगा, एवरेज पेमेंट पीरियड 1 मंथ। So we understand that say 120 plus 72 plus 48 plus 32, any 272 divided by 12, so 22,667। बस खत्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल हो गया फर्स्ट ईयर का। 45,000 प्लस 80,000 plus 36,000 plus 10,000 minus 23750 minus 22,667, so it is 1,24,583। This is the way we have the working capital requirement for the first year, 1,24,583। This is what we understand ना। जो भी फर्स्ट ईयर का है वैसा का वैसा ही रेप्लिका करना है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर का इतना मुश्किल नहीं होगा। फिनिश गुड्स वैल्यूएशन सेकेंड ईयर का हमने कैलकुलेट करके रखा है 1,10,000। कैश कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट सेल्स इज 6,76,000। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा सेल्स क्रेडिट के ऊपर है। So here 6,76,000 divided by 12 months into 1, 56,333। कैश एंड बैंक सिंपल 10,000 रुपए। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल के लिए सिंपल फॉर्मूला है कंजम्पशन। सेकेंड ईयर का कंजम्पशन कितना है सर, 3,60,000। तो देखो ये मैंने लिखा कंजम्पशन
सेकेंड ईयर का 3,60,000 प्लस सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर 67,500, तो उसको ऐड करो। सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक क्या है, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 45,000, उसको डिडक्ट करो। होल डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, 1 महीना, तो इनटू क्या करेंगे 1, इसके ऊपर से अपना क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल आ जाएगा 3,60,000 प्लस 67,500 माइनस 45,000 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 31,875। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस में बहुत ही सिंपल है, ये सब एक्सपेंसेस का टोटल किया जाएगा जो अभी हमने किया वैसा का वैसा ही वर्किंग। जैसे कि सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस है 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस है 46,000, इन सब का टोटल किया जाएगा। ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, नाउ जस्ट वैल्यूज ही लिखना है। 1,80,000 फर्स्ट ईयर का प्लस 72,000, आई एम सॉरी सेकेंड ईयर का, 72,000 भी सेकेंड ईयर का प्लस 48,000 प्लस 46,000, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस सेकेंड ईयर का इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं, डिवाइडेड बाय 12 इंटू क्या है 1 महीना इंटू 1, बस खत्म हो गया। 180 प्लस 72 प्लस 48 प्लस 46 डिवाइड बाय 12, 28,833। Okay, now let us see how to do answer final। 67,500 stock of raw material plus 1,10,000 finished goods का stock plus 56,333 डेटर्स का वैल्यूएशन, कैश एंड बैंक 10,000 रुपए माइनस 31,875 क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, 2,8833 क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1,83,125। This is the simple way by which we'll compute the working capital requirement for the first year and second year. चलो, let us do the revision of the entire question। सबसे पहले हमको ये पूछा है कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना है। बहुत ही सिंपल है स्टेटमेंट बनाना, जो हम लोग नॉर्मल लाइक हमारा प्रिंसिपल्स होता है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन का, वो हम लोग फॉलो करेंगे। सिर्फ आपको थोड़ी चीज का ध्यान रखना है, 1 कि जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के हैं दैट डिपेंड्स अपॉन दैट से कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्शन कम है तो वो एक्सपेंसेस भी कम होंगे, अदरवाइज से वो जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड, जो हमारा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बेचा है। थर्ड, जो भी हमारा फिक्स कॉस्ट है वो हमको कौन से लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर दे रखा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमको ऐसा दे रखा है दैट से फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। तो अगर आप अपना फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं करते हो, इवन इन दैट केस से आपका वो इन टोटल सेम ही रहेगा। तो ये प्रोस्पेक्टिव से हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट ईयर का लाइक एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया, मटेरियल का, लेबर का, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का और डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा जब बाद में हमको वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, तभी उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री को इंक्लूड किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक है 0, फर्स्ट ईयर में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा। जो 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया है उसमें से 5,000 बेच दिया और ये 1,000 नंबर ऑफ यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में है,
उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग 0 माइनस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस करेंगे, जिसमें वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी हैव सोल्ड, और फिक्स तो सेम ही रहेगा इन टोटल। ऐसा करके हमको कैलकुलेशन करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। सेल्स पे से कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिडक्ट करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में मटेरियल है, लेबर है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, डिप्रीशिएशन है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। वहां तक तो कुछ अपने को सोचना ही नहीं है, जो फर्स्ट ईयर का एक्सप्लेनेशन था वही का वही सेकेंड ईयर में लगेगा। सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा 1,00,000 रुपए, सेकेंड ईयर में क्लोजिंग स्टॉक होगा हमारा कितना, 1,30,000 रुपए। वी अंडरस्टैंड दैट द सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया, उसमें हमने फीफो मेथड अज्यूम किया है, यानी इस बार जो हमने 8,500 नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे, उसमें से 1,000 ओपनिंग के थे और 7,500 इस साल के प्रोडक्शन में से, यानी इस साल का प्रोडक्शन जो 9,000 था, उसमें से 7,500 बेच दिया और 1,500 हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। उस हिसाब से फीफो मेथड हमने अज्यूम करके फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किया। वापस सेम ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग विल गिव द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस सेम एक्सप्लेनेशन, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस सेम एक्सप्लेनेशन। प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन किया। एक छोटा सा वर्किंग नोट फिनिश गुड्स के स्टॉक का, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन दो इट इज अ वेरी सिंपल वर्किंग नोट, yet sometimes I have observed that students are facing some difficulty. एक छोटा सा नोट सिर्फ समझने के लिए, एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी नोट लिखने का जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट वेटेड एवरेज मेथड करना चाहता है, then he or she will have the presentation like this, जिसमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा सेकेंड ईयर में, दैट इज ओपनिंग प्लस जो भी हमने प्रोडक्शन किया है इस साल उसका, उसमें से 1,500 का क्लोजिंग बचता है, उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। Then we'll prepare the projected statement of the working capital. स्टेप नंबर 1 में WIP 0, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोसेस में नहीं होगा। स्टेप नंबर 2 फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, इन विच वी अंडरस्टैंड दैट से जो ऊपर हमने डिप्रीशिएशन को इंक्लूड किया था उसको सिर्फ इंक्लूड नहीं करना है, और हमको कैलकुलेट करना है कैश कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड। A smart student may deduct only 120 and can have the working, और अदरवाइज हम लोग पूरा स्टेटमेंट बना सकते हैं। जो भी बना है उसमें से कितना क्लोजिंग है, फीफो मेथड अज्यूम करके क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया। थर्ड स्टेप में कैश कॉस्ट ऑफ द सेल्स का कैलकुलेशन किया जाएगा, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। दिस कैश कॉस्ट ऑफ द सेल्स विल बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेटर ऑन, that is for the purpose of data's valuation. वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट, रॉ मटेरियल का स्टॉक सिंपल है, जो भी पूरे साल कंजम्पशन करना है डिवाइड बाय 12 इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। कंजम्पशन हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। WIP 0, फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन हमेशा हम लोग सेकेंड स्टेप में कर ही देंगे अगर ये नया कंपनी है तो। डेटर्स का वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड in our step number 3, that is cash cost of the credit sales. यहाँ पे पूरा का पूरा सेल्स क्रेडिट पे अज्यूम किया गया है, इसलिए हमने फुल वैल्यू ही लिया है। अगर हमको दे रखा होता that a certain portion of the sales is on cash basis, तो हम लोग सिर्फ क्रेडिट सेल्स के लिए ही कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर डेटर्स वैल्यूएशन। कैश एंड बैंक सिंपल है, 10,000 रुपए क्वेश्चन में दे रखा है। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्किंग है, जिसमें हमको सबसे पहले परचेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और परचेज कैलकुलेट करने के लिए ये मैंने आपको एक छोटा सा इक्वेशन समझाया। क्रेडिट सेल पे कंजम्पशन और क्लोजिंग को ऐड करो और ओपनिंग को डिडक्ट करो, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल आ जाएगा फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। क्लोजिंग का है, क्लोजिंग हमने सबसे पहले कैलकुलेट करके रखा है 45 एंड 67 500। कंजम्पशन हमने आगे कैलकुलेट करके रखा है, सो क्लोजिंग प्लस कंजम्पशन माइनस ओपनिंग।
फर्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा 0, सेकेंड ईयर का ओपनिंग होगा 45,000। ऐसा करके वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द क्रेडिटर्स। सिंपल है, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, पूरे साल का जो खर्चा हुआ है डिवाइड बाय 12, उसके ऊपर से एक महीने का खर्चा आ जाएगा इनटू एवरेज पेमेंट पीरियड, जो हमको क्वेश्चन में एक महीना दे रखा है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, हमको वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं ना, कुछ ऐसा विजुअलाइज करना है कि हमने बिजनेस शुरू किया है, लेट अस से ऑन 1st of April 2022 को, तो हमारा 31st of March 2023 और 31st of March 2024, इन दोनों दिन हमारा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या होगा, उसका हमको एक एस्टिमेशन करना है, और उसके लिए हम लोग ये पूरा का पूरा वर्किंग करते हैं। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड।